in various capacities in Central Water Commission as a Deputy Director, Software Management Directorate, and he has worked in Gates and Design Directorate for quite some time. So this is the brief introduction about Akhil Akori sir. Now I am handing over to Akhil sir for starting the technical sessions. Akhil sir, over to you. Thank you, Srinivas. First of all, I'm thankful for Chief Sir to giving me opportunity to share the knowledge over this platform. And with the permission of Chief Sir, I will start the brief introduction of GEM and its working, because I got the opportunity to work on GEM because see, there are a lot of platform, training platform about GEM. Lot of training materials are available on GEM at the internet. One can easily go through all those things, but these 2-day session is mainly intended for sharing the experience of each other in Central Water Commission or in government organization, because we have to now implement GEM 100% in Central Water Commission or some other organization. As Chief Sir has rightly said that PMO has desired that 100% implementation is must by 31st March 2023. So in that in this connection, we can say that this kind of training is must for central government organization like us. And in CWC nowadays, as far as I am working in Central Water Commission, so I will quote the experience of Central Water Commission. So in Central Water Commission also we deal lot of we have TNP items and this electronic goods that has to be purchased by through GEM platform. So this importance of GEM is very high nowadays, because government wants other transactional interface to be minimized or to be eradicated, I think I can say. And we have to give a one-stop solution, and GEM is most prominent solution. So it gives you transparency, it gives you like best price. Only thing is that sometime you may face a bottleneck on GEM key, you may not know the vendor. So after sales and service, after sales service is actually missing right now. So on that, if you contact GEM help desk, they are also helpless, and they often say that quality of this one end product, quality of byte product, this one is maintaining the quality of end product entirely lies with the buyer. So in that case, buyer, yes, in that case, buyer has to check on everything right from inception of the procurement process to the finish of that. So to give an overview, so GEM is a basically modified version of e-procurement tool. Earlier we used to do this one CPP portal, procurement through CPP portal, procurement through local purchase committee, procurement through direct quotation. So now all those things, all those aspects are covered under GEM, and now anyone can, and this product is not new, as Chief Sir has said that. So we are all aware about GEM, and those who are not aware, they are free to ask any question anytime, because basically this is a experience sharing session. And now I will start with a small presentation. I hope this screen is visible to all. Yes, sir. Yeah.
So as this is PPT, I will share on the group. So there are a lot of things. Maximizing ease, efficiency, transparency, real-time price discovery, automated payment system is also there. It's basically those tender of high value which we used to do on CPP platform, that can also be done through a government e-marketplace. Sir, please make it full screen. Yeah. श्रीनिवास अभी ठीक है? Yes, sir. Perfect. So GeM is a one-stop online marketplace, and it is very much similar to your Amazon, Flipkart, or online other e-commerce platform. Here also, you can give rating to the seller. Seller also can rate you. You can you can buy the product based on the rating of any this one sell product, and there are a lot of other features like you can select the parameters, technical parameters on GeM, and based on that technical parameters, product of your desired quality can be filtered. So basically, this in 2016, one rule 149 has been inserted in GFR. Earlier, GFR 2005 was there, and based on all the changes over the years, GFR 2017 was launched, and in that, all the comprehensive guideline about GeM and other things has been incorporated. And GeM is the modified version of DGS&D. Earlier, those who are working for more than 10 years or 15 years, they might be knowing about DGS&D, importance of DGS&D. Earlier, all the rate contracts were decided by DGS&D, wherein all office furnitures, all technical goods like your whatever you are procuring, this one computer and other common goods who are popular in Delhi, because this is DGS&D was mainly based in Delhi, so all the products were available. And now GeM has been GeM new authority GeM has come up, and DGS&D has been subsumed in that GeM. So now GeM is a special purpose vehicle, and this rule 154, in GFR there is a one rule 154, purchase of goods without quotation, and that is up to the value of 25,000. That is the direct work order, direct supply order you can give to any vendor which meets your requisite quality of the product. And there is a one rule 155, purchase of goods by purchase committee. But this purchase committee is basically LPC, local purchase committee, and over the time, this local purchase committee, you might be knowing that there are 3 members in local purchase committee, and all 3 members has to, on theoretical ground, like all the purchase member committee members has to go to the market, and they have to decide a common price, and that should be lowest price. So this up to 2,50,000, this ceiling of this is the ceiling of LPC, but in GeM that has been modified. There is a rule 160 that provides you this one provides you guideline for e-procurement, and it is mandatory for ministries department to receive all bids through e-procurement portals in respect of all procurements. So over the time, over the last 10 years, government has modernized the procurement process due to maybe they might have faced some lacuna over the time. So they are trying to remove it, and they are trying to introduce transparency.
in the system. And once the transparency comes, you will get the best price, you will get the quality of your this one. So GeM, basically philosophy behind GeM is that only you have to give the best price, you have to get the best price, and transparency is the core. See, and GeM gives you this one price of including of GST. So GeM quotation is also validated. You need not to sign this CPWD form. क्या है वो वाला form जो हम estimate में बनाते हैं? CPWD form 123 for estimate signing. So and there is a rule 162 wherein limited tender inquiry was also there, and these are the part of GFR. I would like to just give brief overview about GFR and CPP portal. So I was just discussing that. So GeM basically provides users the speed and flexibility of e-commerce site in sourcing its requirement, provide more transparency in procurement procedure and equal opportunity to each suppliers. Basically, it minimizes human interference, and basically it is an electronic interface for your procurement needs. And this is the to minimize the cost of procurement through reasonableness of the price. And you are accountable also. Responsibility of dealing person is also there, because someone like initially in the committee, no one was responsible. So now there is a one consignee, there is buyer, there is a DDO role. So everyone is accountable. So this is the different check levels government has provided at GeM platform. And this is technology enabled, dynamic, self-sustaining, user-friendly, fair and transparent procurement system. And I think GeM 4.0 has come up now. So over the time, this GeM has evolved and based on our feedbacks only, buyers feedback, sellers feedback, and they have categorized all the items based on their needs and based on the use of in the government system. So till now, I would like to ask the audience, till now, if any question is there, any doubt is there, they can ask. Otherwise, I will go to the next slide. Yes, you may proceed, please. Okay, I think there is no doubt. So buyer is the contract placing authority, and buyer can be any gazetted officer in our government setup. All the ministries now, every organization, they are bound to make the procurement through GeM. So basically, this is about seller and service provider. So I need not to read out. You can just go through it. I will share it. सर नमस्कार सर, मैं पाटीदार बोल रहा हूँ सर। सर बताइए सर। सर ये आपने वो पीछे बायर वाला जो शब्द बताया था, इसमें गजेटेड ऑफिसर होना जरूरी है क्या? जी सर, हमारे वेंगंगा डिवीजन में तो सब ये जेई कर रहे हैं सर। ये तो ये कंसाइनी भी वही है। मैं तो देखिए इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बिकॉज इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का अपना कुछ होगा इंटरनल। बट हम लोग क्या है कि यहाँ पे जो करते हैं ना, बायर हम अलग बनाते हैं, कंसाइनी अलग बनाते हैं। Yes. और डीडीओ का रोल अलग होता है। लेकिन सर ये तो लास्ट 2-3 साल से ऐसे ही चल रहा है, इसलिए हमने क्वेश्चन किया कि फिर अगर गजेटेड ऑफिसर वहां पर AD2 या दूसरे रैंक के है तो उनको देना चाहिए फिर। बेसिकली देखिए ओम प्रकाश साहब, पहले क्या था ना, जब हमने GeM इनिशिएट किया था, जब हुआ था, जब उस समय CWC में
तो उस समय तो बायर जो होते थे वो डीडी लेवल के ऑफिसर होते थे। हाँ सर, वही कम से कम AD2 लेवल तक तो गजेटेड है तो होना चाहिए फिर वो। हाँ, मेरे यहाँ जो सेटअप है ईटानगर में, मैं AD2 हमारे विकास SDE हैं, हाँ उनके उनके मोबाइल पे ये है, बायर का रोल है, और DDO का रोल XCN के उस पे, मेरे उस पे है, और PAO का रोल सर जो है। हाँ प्लीज। सर सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ थोड़ा तो। हेलो, कैन यू हेयर? सर, इसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस वगैरह कुछ है क्या सर इसका? हाँ, गाइडलाइन मैं शेयर कर दूंगा। ओके सर। बेसिकली गाइडलाइन तो आप जेम पे सर जाकर देख बायर सकते हैं। क्वेश्चन कौन होगा इसके बारे में एक बार और रिपीट करेंगे सर प्लीज। एक बार रिपीट तो कर। कैन अच्छा, मैं रिपीट करता हूँ। देखिए, बायर जो है ना, यूजुअली जब स्टार्ट हुआ था जेम, तो उस समय बायर जो था वो डीडी लेवल का ऑफिसर होता था। मान लीजिए लेवल 11 का ऑफिसर है, ठीक है। तो जैसे ये आपका जेम जो है आगे बढ़ा, लोगों को नीड बढ़ी, जैसे जैसे जेम को पॉपुलर करने के लिए उसका रोल जो है नीचे करते गए हम लोग, AD पे लाए, SO पे लाए। इवन मिनिस्ट्री में सेक्शन ऑफिसर जो होते हैं वो बायर होते हैं। अच्छा, और मान लीजिए अगर सेक्शन ऑफिसर बायर हैं तो किसी को DDO भी बनाना होगा, तो DDO का रोल किसी और जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं उनको दिया जाता है। बट DDO जो होता है की रोल होता है, और बायर जो है आप AD2 तक दे सकते हैं, और अब नीचे कितना कर सकते हैं ये मैं एक मिनट। नहीं बोलूंगा इस टाइम पे। यू हेयर सर? जो मतलब अभी जो हुआ सर, इसके बारे में कोई रूल अभी तक अगर होगा भी तो उसको ठीक से फॉलो करना मुश्किल है ना सर? एक्चुअली फॉलो करना मुश्किल है, इसीलिए अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना सेटअप है, और आपने अप्रूवल लिया होगा, चीफ सर उसके वो होते हैं तो मैं उस पे हम लोग नहीं जाते हैं। जब जो रोल जिसको हो गया वो हो गया, हम क्या कर सकते हैं उसमें। बस हेलो, ये है कैन कि यू कोई हेयर? ना कोई तो चेक करता होगा ना, डबल होंगे वहां पे। नहीं, AA वगैरह सब तो है सर, लेकिन जो मतलब हमारी पॉलिसी है, पॉलिसी के अकॉर्डिंगली अब आप बोल रहे हैं कि चीफ साहब उसको परमिट कर सकते हैं, तो वो तो देखना पड़ेगा कि चीफ इंजीनियर ने उसको परमिट किया है क्या। ठीक है सर, एक्चुअली हाँ, मैं इसमें नहीं जाऊंगा बिकॉज हमारा ये डोमेन नहीं होगा अभी डिस्कस करना। बट मैंने जो अपना अनुभव था मैंने शेयर किया, और नहीं सर, वो आपने हमेशा रिस्पॉन्सिबल आदमी जेई जो होते हैं उनको कंसाइनी बनाना चाहिए, दैट्स ऑल। Acha, Akhil sir, can I say something in this? हाँ हाँ प्लीज। Actually, strictly speaking, there are no clear guidelines on this part. Who can be the buyer? And ऐसे कोई guidelines नहीं है. But freedom, जो primary user होगा, that could be the head of your particular organization. He has he has been vested with that power. He can decide who can be the buyer and who can be the consignee. So generally, the consignee could be the lowermost reserve in an organization, and buyer could be one generally जो भी कंसर्नी होगा उनके एक हायर लेवल में बायर हो सकता है. So in CLPC setup we generally keep AEs or assistant directors as buyers and junior engineers as consignees. This is what we follow, and naturally it varies from organization to organization and from office to office. So by जिम के हिसाब से कोई ऐसा clear guidelines नहीं है. It all depends on the primary user. We generally allot the roles. That's what I can say. या हाँ श्रीनिवास, आपने सही बोला, बिकॉज जब इनिशियल आया था जेम, जब 2017 में मैंने एक देखा है जिसमें ये बायर का रोल जो था ये आपको गजेटेड ऑफिसर को होना चाहिए, बाद में SO तक का दे सकते थे। तो बेसिकली आप डेलीगेट करेंगे तो फिर तो नीचे जो है आपको LDC UDC को भी आप दे सकते हैं बायर का। Yes, yes, sir. बेसिकली टेक्निकल टीम में मतलब एटलीस्ट जेई जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Yes, yes. भले ही वो नॉन गेस्टेड होते हैं बट दे आर रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज वो TNP आइटम जेई के ही उसमें रहता है, और Yes, sir, yes, sir. आइटम सारा वही मेंटेन करते हैं। तो अगर हम सेंट्रल वाटर कमीशन की बात करें तो जेई जो है कंसाइनी बनेंगे, SD से एबव जो है वो अगर बायर एंड अदर रोल्स जो भी होता है वो करें Yes, तो sir. बेस्ट होता है। Yes, yes, yes. जी मतलब पूरा फ्रीडम एक्चुअली हेड ऑफ ऑफिस को यार प्राइमरी यूजर को दिया गया है सर एक्चुअली. जी कुछ कुछ ऑफिसेस में क्या होते हैं पर्टिकुलर PO ऑफिस जो अकाउंट्स डील करते हैं उनमें उनके पास कोई टेक्निकल स्टाफ नहीं रहेगा,
फिर भी उनके पास किसी मतलब यूडीसी और सीनियर असिस्टेंट लेवल में किसी भी बायर या कैंसर भी बना सकते हैं सर। दूसरी को सही तो जान তাহলে একটা ওই Yes, yes, yes. So anyway, sir, that is not. Let us not deviate from our actual Yeah. topic. Okay. ठीक है, ये जेनरिक चीजें हैं। मैं जेम का लॉगिन करता हूँ और मेरे ख्याल से उस पे ज्यादा हम वो करते हैं। मैं ब्राउजर जो है जेम का लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। और इन द मीन टाइम आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जेम से रिलेटेड तो पूछते रहिए, बिकॉज कुछ हो सकता है हम लोग आपको बता दें जो नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है वो हम आपको बता दें, और हेलो। अगर कुछ होगा आप हमें बताइए, हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे। सर जेम में बायबैक की फैसिलिटी बहुत कम है। हेलो। यस, बायबैक के लिए जो है ना, ये मेरे जेम को के जो हमारे बेसिकली एक होते हैं, हर एक मिनिस्ट्री में जेम के एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं, तो हमारी मिनिस्ट्री के भी हैं, तो हमें शायद उनको लिखना पड़ता है कि ये बायबैक का फीचर आप ऐड करिए, हेलो। तो आप यूज कर सकते हैं उसको, लेकिन उसमें हेलो। टाइम टेकिंग है, अभी तो बायबैक नहीं है। हेलो। जी सर, ये क्वेश्चन हमने सेंड भी किया था जेएस साहब की मीटिंग में, जी, और इसकी वजह से जो है टारगेट अप्रोच नहीं हो पा रहा है। लेकिन सर ये बायबैक का क्यों आप चाहते हैं? बायबैक से अच्छा ऑप्शन कर दीजिए आप सामान को। सर कई बार जो है जैसे बैटरीज वगैरह हैं, वो इंस्टॉलेशन के लिए जो है पुराने बैटरी वापस जाके नए बैटरी आते हैं, उसमें कॉस्ट भी कम होता है, दूसरा जो पर्सन है सप्लायर है वो आके इंस्टॉल भी करता है। So this installation and buyback facility, if it comes into the GEM, then it will increase our purchase efficiency. That is I target we think, can but achieve. at the same time, it will delay the process also. Like you may not be able to meet the target. Sir, I mean that as many facilities as it comes into the GEM, Yeah, it becomes easy. yeah, Rather than that is restricting there, that is that there, it is but not possible, it should be increased. Facilities should be increased. yeah, definitely it should be, but that also takes time, because even a category creation in GEM is a very tedious task. So that also should be taken care, because ultimately we have to achieve the physical and financial progress also. Yeah, I left this with the GEM organization that with how they Hello. can add this part. Yeah, we can write them. Yeah, please बताइए सर, क्या बता रहे थे आप? सर नमस्कार सर। सर एक चीज पूछना है सर, जो बीयूक्यू बेस्ड सर अभी जो जेम में एक पार्ट आया हुआ है सर, इसको सर इसमें सैंपल जो फॉर्मेट है एक्सेल शीट जो हम लोग बीयूक्यू क्रिएट करते हैं उसमें सर बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, उसका फॉर्मेटिंग सही से नहीं कर पा रहे हैं हम लोग सर। इसमें शहादत जी मैंने किया है, अभी एक जनरेटर हम लोगों ने खरीदा है, जेम पे बिड किया, बीओक्यू बिडिंग, तो उसमें शुरू में उसके फॉर्मेटिंग में क्या है, जो आप प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं ना, उसमें स्ट्रिंग का लेंथ बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप उसको छोटा छोटा रखेंगे तो आप मैंने अपलोड कर लिया है, तो आप भी वैसे कर सकते हैं ट्राई। सर मुझे केमिकल्स लेना था सर, तो केमिकल्स के लिए सर हमारे पास मतलब 25 आइटम्स थे सर, तो जी, वन सीट में सर वो मतलब फिट नहीं हो रहा था सर, बार बार एरर बता रहा था सर। ओह, वन आइटम के लिए अभी सर ट्राई कर कर सकते लेंगे हैं, हम लोग। लेकिन सर ज्यादा आइटम्स के लिए एक साथ बीओक्यू बनाने के लिए सर उसमें प्रॉब्लम आ रहा था सर। एक्चुअली पहले तो बीओक्यू बिडिंग में एक एडवाइजरी आया हुआ है कि जिस आइटम का कैटेगरी ऑलरेडी इस पे है जेम पे, तो आप उस आइटम का बीओक्यू बिडिंग नहीं करें। जी सर, जी सर। चलिए उसको भी हम देखेंगे, आपका ये वाला इशू हम लोग देखेंगे। हेलो। 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 हाँ, हेलो, बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी। हाँ, बताइए। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜੈਂਪਰ ਕਾਟ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਖਰੀਦਣੇ ਵਾਸਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਾਟ, ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ
एक्सटेंड कर सकते जिन्हें कार्ड च आइटम ਲਈ ਵੀ सर मैं थोड़ा हिंदी में बोलेंगे अगर कंफर्टेबल हो आप तो। मैं समझ नहीं पाया। सर मैं कहना हाँ सर मैं कहना चाहता हूँ जब हम कोई आइटम परचेज करते हैं जी भी उसका 10 डे होता है भी कार्ट में करने के बाद में परंतु कभी कई बार कोई फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं जैसे प्री चेक ईओ से करना पड़ता है जो कभी वो ना एक्सपायर हो जाता है उधर चेक अप्रूव नहीं होते फिर आइटम उस अमाउंट की फाइंड नहीं होती फिर वो कैंसिल हो जाता है ऑर्डर क्या उसे हम एक्सटेंड नहीं कर सकते भी जैसे 10 डे है फिर हम आगे उसे बढ़ा दें कोई ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है नहीं, जैम पर इसमें नहीं है बिकॉज आप ना बेसिकली पहले तो इसका सॉल्यूशन है कि आप एमआरपी पे अप्रूवल लीजिए और ओके मतलब हायर प्राइस पे। और दूसरा ऐड टू कार्ट जो करते हैं ना वो 7 डेज तक शायद वैलिड होता है। और 10 डे 10 10 डेज डेज तक का तो आप विद इन 10 डेज ले हाँ लीजिए बिकॉज आजकल तो सारा कुछ ई ऑफिस में होना है। हाँ सर फिर भी कभी कभी ना हो जाता है ना फिर वो प्राइस मिसमैच हो जाता है वो क्योंकि काट के वो है कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है उस हिसाब से सैंक्शन अप्रूव होती है ना सर उससे हिसाब प्रॉब्लम आती है वो बेसिकली देखिए ये हमारे यहाँ इशू नहीं आया आज तक बिकॉज हम लोग हाँ जी मतलब एज ए टीम जब काम करते हैं तो हमारा जो हमारे जेई होते हैं मैं उनको बोल के रखता हूँ वो लोग भी छुट्टी के दिन भी या ऑफ टाइम में भी जेम पे कर लेते हैं काम। तो ये थोड़ा सा आपको 10 हाँ जी डेज मतलब सर आपको वो करना पता पड़ेगा। कैसे कहते हैं जैसे हमें कुछ ना बीबीएमबी में एओ से प्री चेक करानी पड़ती है जी वो कोई भी सेक्शन निकालनी है ना उस और निकलने के बाद उसको एओ से प्री चेक करनी होती है ना उसके बाद टाइम लग जाता है क्योंकि एओ थोड़ा सा फोन सर करने में लेट हो जाता है आप सीडब्ल्यूसी में हैं या कहीं बाहर काम करते ना बीबीएमबी में भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट हैं? बोर्ड अच्छा में अच्छा अच्छा। हाँ जी प्री चेक में सर तो एक फिर डब्ल्यू साहब को भी ऑन बोर्ड आना पड़ेगा इसमें। जेम तो ऐसा प्लेटफॉर्म है जैसे 10 दिन तो मेरे ख्याल से काफी है। नहीं सर फिर भी कोई ऑप्शन आप कर दें ना वो उसी प्राइस को आप इंक्रीज कर लें 5 डे या एक मौका और दे देना देने का ऑप्शन जो आप कर सकते हैं तो कर लो नहीं तो चलो कोई बात नहीं सर वो ऑन तो बोर्ड ऑप्शन नहीं हो करते जाएगा ना एक्चुअली कई बार थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए एओज ऑन बोर्ड नहीं करते फाइल पे करते हैं अच्छा हाँ वो सर इसलिए टाइम लेते हैं सर क्यों सर, ये डब्ल्यू प्रॉब्लम वहाँ हम भी पे फेस कर रहे हैं। जेम पे नहीं है? नहीं ये जैम पे प्रॉब्लम होते हम हैं भी सर फेस कर रहे हैं नहीं सर। ना करते सर हाँ सर एक क्वेश्चन मेरा और था सर जैसे आपने बायर और कंसाइनी का आईडी बनी है बायर चेंज हो गया ट्रांसफर हो गया उसके बाद उसकी वो जो आईडी है कैसे चेंज करेंगे नए ऑफिसर के नाम की बायर और नहीं, कंसाइनी ये दोनों जिनके के पास कैसे चेंज प्राइमरी करेंगे प्राइमरी लॉगिन है, यूजर करेगा प्राइमरी आईडी का लॉगिन है, वहां से वो उसको हाँ जी डीएक्टिवेट करना होता है। और जो नए लोग प्राइमरी होते हैं यूजर उनका करेगा तो आधार आईडी और ईमेल आईडी देके आप उस पर एक्टिवेट कर दीजिए नए लोगों का। और नहीं उसमें ही आधार और करके देना है क्या कि किसको सबमिट करना है वो और सर वो नया बीबीएमबी आधार के जो कार्ड और प्राइमरी यूजर हैं चंडीगढ़ बैठते हैं वो करेंगे जी स्पेशल सेक्रेटरी साहब सिस्टम करेंगे मैनेजर वगैरह ठीक है I am सर ठीक Sanjay है सर Dadish from ओके BBMP सर also ठीक है सर okay सर एक चीज पूछना है ओके सर। थैंक यू सर हाँ बताइए सर। हमारे इधर कोई एक बायर है जो पहले कोई दूसरा एचओटी का अंडर रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो अच्छा अभी उनको वो जो जिसमें रजिस्टर्ड है उससे निकल के अभी हमारा इस ऑफिस के एचओडी में लाना है तो क्या करना पड़ेगा सर? पहले वहां पे उनको डीएक्टिवेट करना होगा। पहले उनको जहाँ हेलो पे उनका वो लॉगिन बना हुआ है उसको डीएक्टिवेट करना है। उसके बाद जो है आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। सर मैं कह रहा था कि एचओडी चेंज होगा सर, मतलब एक एचओडी चेंज हो एचओडी गया से है। अंडर एचओडी तो से निकल के जेम को दूसरे आप एचओडी में लाना वो है। करिए, हेल्प डेस्क पे कॉल करिए, एचओडी चेंज हो जाएंगे। हेलो। हेलो। हाँ सर प्लीज। हाँ हाँ शुभांकर जी बताइए। हाँ सर प्लीज एक बार बता दीजिए क्या। मैं ये कह रहा हूँ जब एचओडी चेंज होते हैं ना तो आपको क्या है इनको बताना होगा। ये जो जेम के सपोर्ट वाले होते हैं ना आप उनको कॉल करके बताइए कि साहब ऐसा ऐसा हो गया है। तो उनका जो नए वाले साहब है उनका आईडी आपको उसमें अपडेट करना पड़ेगा। हेलो। हाँ श्रीनिवास। सर नमस्कार सर एक चीज पूछ रहे थे और सर और एक चीज पूछना था।
जी जी एक्चुअली आई थिंक क्वेश्चंस उसके लिए हमने लंच के बाद वैसे भी सेशन रखा है. गो अहेड विद द सेशन सर नाउ. हाँ श्रीनिवास, ये वाला चीज जस्ट ऐसे बताइए, जैसे अभी आपके यहाँ पे चीफ इंजीनियर साहब चेंज हुए हैं, यस यस यस. प्राइमरी यूजर कैसे आपने चेंज किया, एक बार जस्ट शेयर कर देंगे तो शायद. Acha. So, actually, as per the setup, we are going to have a master user on top of core हाँ user, who is going to be the HOD of every department. Could be the, I mean, in CWC, I mean, the power has been vested with CHRM. Generally, it is chairman, but it has been redelegated to CHRM. He is the master user for CWC. And on below to master user, we have got primary users. So at the level of generally deputy secretary or director level in central government, and in state governments at the level of SC or even executive engineers at some of the offices. So whenever primary user changes, then the master user can reassign the role to somebody else. तो सपोज ये भाखड़ा बियास में है जैसे साहब लोग, तो उनका हाँ कौन सर. करता होगा? उनका तो सर उनका ये उनका जो टॉप मोस्ट HOD होगा उनका बोर्ड का जो भी मिनिस्ट्री है. में. हाँ हाँ वो करेगा सर. That is Secretary BBMB Chandigarh. यस यस यस. आपका जो भी HOD होगा, ही इज द मास्टर यूजर. Yes. Okay. Yes. He can change it. Okay. In GEM, just like in government, in GEM also there is a hierarchy. So on top of every user there is one hierarchy. So they can control it. Uh-huh. If no one has given any authority, then the default one is the giant secretary of concerned ministry. Yes. In our case, it is this RDNPP for Ministry of Jal Shakti. Yeah. He is the nodal officer. He has the privilege to change any. Of course, he can modify any primary user details. And primary user can modify like buyer consent that primary user can do. But for updation of primary user profile, the only master user can do it, or the concerned nodal officer of the ministry can do it. This BBMB is under Minister of Power, so that primary user can be changed from there. Yes, sir. Yes, sir. Ministry definitely will be given. Right. Hello. In primary user case ना हेलो हाँ जी बताइए. हाँ बताइए. प्राइमरी यूजर केस में अगर पिछले वाला जो प्राइमरी यूजर है उसके अकाउंट में एक इनवाइट करके न्यू वाले को भी कर सकते हैं ना? नहीं दैट इज एक्चुअली वो कर सकते हैं, बट वो प्राइमरी यूजर मान लो कोई बायर का करना है या कंसर्न करना है, अब जो बोल रहे हैं ना वो वाला एप्लीकेबल होगा. लेकिन प्राइमरी यूजर का डिटेल्स अपडेट करने के लिए बेसिकली मास्टर यूजर कर पाएगा. पहले ये था, अभी चेंज किया हो. बट मैंने सो मेनी टाइम्स मैंने किया है. अभी रिसेंटली तो आप चेक कर लीजिए रिसेंट अपडेट. ओके. पहले जनरली बायर का क्या होता है, प्राइमरी यूजर किसी को चेंज करके उनके ईमेल आईडी में जाएगा, इनवाइट जाएगा, उधर से कर सकता है. बट नाउ इट हैज बीन चेंज्ड. ओके. Again, sometimes what may happen in some of the departments, the master user might have delegated these privileges to even primary user also. In that case, it may be possible, but in our setup, actually, it is not there. Just 2 days back only, I have done this one, so I can. I'm very well aware of this. I mean, this update. Yes. You are the most right person to answer this question. Yeah. Okay, sir. Okay, thank you. Okay, that's why in Central Water Commission, all chief engineers are actually primary users. And on behalf of chairman, CHRM has been delegated the role of master user. So this is the, I think everyone is able to see this one. The browser, GEM browser. Is it visible? Yes, sir. Yes. Visible to everyone. Okay. So now, first of all, we will browse Please through do it this full one. screen. Yeah, it is not full screen. No. You may do is landscape. It can possible.
श्रीनिवास अभी दिख रहा है? Yes, yes, perfectly. कौन सा ब्राउजर दिख रहा है ये? हमको तो फुल स्क्रीन ही दिख रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। फुल स्क्रीन कौन सा, जेम का ये दिख रहा है आपको? या जेम का आपने खोला है ना ब्राउजर का अभी, हाँ हाँ हाँ, वो दिख रहा डैशबोर्ड है। दिख रहा है। यस यस यस। ओके, हम लोग इसको सबसे पहले we will navigate this GEM portal. First of all, in this top left, there is one tab category. This categories, under categories, you can see all the products, all the services. You can browse all categories, browse all products, all brands, BOQ based bidding. Under the product, you can have computers, office supplies, specialized vehicles, office machine, appliances, softwares, automobiles, furniture, two-wheeler. Okay, so all the product might fall under this category at one place or another other. So under services also there are a lot of services. And under services you can search, or you can just under drop down menu you can see services. This webcasting services, drilling services, web conservation service, water audit, lot of this ones, all the services has been added now. I think initially it was not there. For basically in Central Water Commission or other places, we are mainly interested in manpower services. So I will show you the manpower services. See, first of all, there is support services. So here you can go intent of buying as a bid or direct this one, but usually support services bid is there. We have to select the consignee. सर कुछ दिख नहीं रहा है सर। दिख नहीं रहा है? Sir, screen is not changing. हाँ ये हाँ सर, सर, स्क्रीन तो चेंज ही नहीं हो रहा है आप सर। जो बोल रहे हैं वो दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे। आपका कर्सर चल रहा है बस, और कुछ नहीं। हर घर तिरंगा only- इसी पे चल रहा है। बेसिकली इंटरनेट स्पीड का इशू है। आपके एंड पे इंटरनेट का इशू, अगर स्पीड अच्छा है तो आप अच्छे से देख पाएंगे, अदरवाइज बहुत लोगों को जिनका स्पीड अच्छा है वो दिख रहा होगा उनको। सर किसी को नहीं दिख रहा। मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, रुक जाइए। सर पहला स्क्रीन gem.gov.in ही चल रहा है। सर हर घर तिरंगा वही दिख रहा है। यस सर, हर घर तिरंगा ही दिख रहा है हर घर सर। तिरंगा दिख रहा है सर। यस सर, हर घर तिरंगा। अभी क्या दिख रहा है बताइए? अभी आया, अभी आ गया। ऑल कैटेगरीज आ गया है। अभी कुछ ऑल कैटेगरीज दिख रहा है इसमें। यस सर। सपोर्ट सर्विसेज दिख रहा है, ठीक है। मैं यहाँ से जाता हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर अब रहा आइए हूँ। चेंज स्क्रीन। अभी सबको दिख रहा है कि नहीं ये बताइए पहले। हाँ अभी दिख रहा है, चालू हो रहा सर अभी दिख रहा है। थैंक यू। ओके सर। अभी सबसे पहले we have to go to categories. Okay, under categories you can search the product or services. Okay, under the product you can see all the categories are there. All the appliances, software, two-wheeler, furniture, automobiles, everything is there. As per your need, you can search the product. Otherwise, you can search the product from this one also. Here under beside this all categories, there is one tab. Here you can type like pen drive. So under pen drive, you can search your this one. Sparkle pen, pen stand, pen drive, flash drive, permanent marking pen, gift pen, tape drive, pen sanitizer sprayer, roller ball pen, pen stands, hard disk drives, everything is there. So you can select it. So I will go to the pen drive or flash drive. See, after clicking it,
Usually these are not high value items, so this you can purchase through below 25,000 direct quotation option. So here, if you want to filter out, like, see, there are 995 search pages. So like Amazon and Flipkart, you have this sort by best match, price low to high, price high to low, latest on top. So usually nowadays pen drive USB 3.0 is popular. C type, that is popular. So you can search your requirement and accordingly you can filter out. So first of all, include out of stock. So I will click yes. So it will filter automatically. Make in India, yes. See, now only out of 1000 search pages, now 197 pages are there, search pages. So even for direct quotation also, we have to opt for Make in India product. That is mandatory nowadays. MSC category, there are 3 categories. One is open. Yeah, please. One is open, other is this one, SC/ST category, and third one is women category. So you can opt for all. Sir, Okay, sir. Sir, you are on mute. Sir, only cursor is moving. श्रीनिवास, एक एक्चुअली कॉल आ गया था. ठीक है सर, प्लीज गो अहेड. तो यहाँ पे स्टार्टअप भी आप क्लिक कर सकते हैं. स्टार्टअप में यस कर दीजिए तो आप देखेंगे वो जो फिल्टर आउट. आप देखो, आप यहाँ पे एमएससी कैटेगरी में कोई भी लोकल वेंडर पेन ड्राइव तो नहीं बनाएगा. तो आपको देखिए ऑल जब हमने क्लिक किया एमएससी में तो सारे प्रोडक्ट चले गए. अभी आप देखिए जब हमने एमएससी हटाया, स्टार्टअप हटाया, तो यू आर हैविंग दिस वन 197 into 12 3 4 197 into 12. That number of products you can opt. Seller rating also, like suppose if you want to buy a product from a seller who is having rating above 4 only, then this one greater than equal to that you can apply. So see, this is the filtering criteria. You can zero in about the seller, about the product. Okay. Financial, this for this one direct quotation, we don't need any financial criteria. Make model selection, you can go for it. And I hope it is visible to everyone now. So see, OTG, this one I was talking about, USB 3.1 is there. And from here model, you can see those who are having largest number, then you can opt for. And if you know any vendor direct, you can select his product based on his filtering criteria. So I think इसमें कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो नंबर जिसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो आप इसको मॉडल ना ही सेलेक्ट करें तो बेहतर है. एचपी का यहाँ पे जैसे नंबर ज्यादा है तो मैं एचपी को क्लिक करूंगा, बिकॉज यूजुअली एचपी का
भी ठीक ही होता है। आप देखिए यहाँ पे जब हमने HP सेलेक्ट किया तो दिस नंबर ऑफ सर्च पेजेस हैज बीन रिड्यूस्ड नाउ फ्रॉम 197 to 50. So by this filtering technique you can search your product, you can select your product. यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताइए। तो आगे मैं एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है मैं बता दूंगा आपको कि यहाँ पे जो आप देखेंगे जितने भी यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो इंटेंट ऑफ बाइंग इंक्लूडिंग आउट ऑफ स्टॉक, मेक इन इंडिया, MSC, स्टार्टअप, इसका कलर जो है ब्राउन या ब्लैक है, ग्रे है। एंड लास्ट में जो ये कलर है आप देखेंगे ये तीनों का कलर जो है गोल्डन कलर है। तो बेसिकली ये जो गोल्डन कलर होता है वो मैंडेटरी पैरामीटर होता है, गोल्डन पैरामीटर एंड नॉन गोल्डन पैरामीटर, दैट इज जेनरिक पैरामीटर। तो आपको जो है गोल्डन पैरामीटर पे जो आप सेलेक्ट करोगे तो वही चीज उसमें फिल्टर होगा। अगर बिडिंग कर रहे हैं आप तो गोल्डन पैरामीटर को आप चेंज नहीं कर सकते। जब कोई भी चीज बल्क में ले रहे हैं और वहाँ पे गोल्डन पैरामीटर आएगा तो आप गोल्डन पैरामीटर के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। जेनरिक पैरामीटर पे कोई भी बिड कर सकता है, जो गोल्डन पैरामीटर है वो मैंडेटरी हो जाएगा सेलेक्ट और रिजेक्ट करने के लिए। अगर किसी का ये आप में किसी AEEE GRMB का माइक ऑन है, आप आई थिंक ऑफ कर लेंगे तो अच्छा रहेगा दूसरों के लिए भी। सर इसमें क्वेश्चन पूछना है सर। हाँ प्लीज। सर ये जो हम लोग गोल्डन पैरामीटर पे अप्रूवल लेकर सर हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग क्या होता है कि कभी अप्रूवल ले लेते हैं मतलब HP का कोई मॉडल का, फिर वो मॉडल दिखता ही नहीं है तो सर मुश्किल हो जाता है सर। हाँ ये तो स्टैंडर्ड है। गोल्डन पे पैरामीटर अगर बेसिकली approval मिल टेक्निकल जाए पैरामीटर है। कैसे? गोल्डन पैरामीटर जो है ना वो टेक्निकल पैरामीटर है। जैसे कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए टीवी है, तो टीवी का कुछ गोल्डन पैरामीटर होगा उसका। अब मैं तो वो नहीं हूँ लेकिन उसका कुछ एक फिक्स पैरामीटर होगा। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर सब लोग जानते हैं, तो कंप्यूटर में आप देखेंगे जो प्रोसेसर है, क्लॉक स्पीड है, उसका जनरेशन है, ये सब तो गोल्डन पैरामीटर होगा। वो भी हम एक करके दिखा देंगे आपको अभी। बट हमेशा अप्रूवल गोल्डन पैरामीटर पे ले तो अच्छा होता है, बट बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव नहीं लेना चाहिए। बाद में हो सकता है आपको फिर से अप्रूवल लेना पड़े। कई बार गोल्डन पैरामीटर में वो प्रोडक्ट जो आपने सेलेक्ट किया है वो है ही नहीं। यस सर। तो एक तो थंब रूल आप ये बनाइए कि गोल्डन पैरामीटर पे लीजिए, और दूसरा है कि MRP पे अप्रूवल लीजिए आप। MRP पे थोड़ा अप्रूवल हायर तो सर प्राइस कोई पे देगा ही लीजिए। नहीं सर, मतलब जो ऑफर रेट है उसी पे मिलता है सर। नहीं, ऑफर रेट पे तो आप अप्रूवल तो आप हायर प्राइस का लेंगे ना। मैं ये कह रहा हूँ MRP का मतलब ये है, जैसे आप देखिए यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए मैं एक ये सेलेक्ट किया है HP 32 GB का, जैसे 800 को क्रॉस करके 459 रुपीज है। यहाँ पे ये दिख रहा है आपको? यस सर। ये दिख रहा है ना, ये वाला मैंने जिसको अभी सेलेक्ट किया, इसमें आप देखिए जो ये वाला प्राइस है ना 800 वाला, वो दैट इज द MRP। तो आप या तो MRP पे नहीं लेना है तो आप जो हायर प्राइस है, जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करिए बेस्ट मैच में, यहाँ पे बेस्ट मैच में जो है प्राइस हाई टू लो जाइए। जो हायर प्राइस का प्रोडक्ट है, जो गोल्डन पैरामीटर आपको मीट कर रहा है, आप वो ले लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। तो तो सर आपको कभी बाद क्या में हुआ, हम चेंज लोग नहीं करना अप्रूवल पड़ेगा। लिए सर और हमारा हायर ऑफिसर बोलेंगे कि ये तो रेट इतना में मिल रहा है, आप इसको अप्रूवल के लिए मतलब एस्टिमेट में डालिए, तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है सर। इसमें मेरा शहादत जी ऐसे है कि एक हम लोगों का जो बिड होता है, जैसे हम लोगों को सर्विसेज में हम लोग करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं अपना जेम का लॉगिन आईडी भी दे देते हैं ई ऑफिस में। अगर मान लीजिए किसी को डाउट है तो वो तो उसमें देख सकता है ना, लॉगिन करके चेक कर लें फिर। अदरवाइज 2-3 स्क्रीनशॉट आप दे दीजिए लगा के, प्रपोजल थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बनाइए, तो सीनियर ऑफिसर को भी कोई क्वेश्चन नहीं होगा। एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर? हाँ हाँ प्लीज, मोस्ट वेलकम। सर जैसे आप ये कह रहे हैं, अब मोस्टली क्या होता है, जैसे जैम पे काफी प्राइस हाई होता है किसी प्रोडक्ट का, तो जब अप्रूवल के लिए भेजते हैं तो वो कहते हैं अब मार्केट रेट लेके उसके कंपैरिजन में वो बनाओ। मार्केट में वो सस्ता हो तो फिर हमारे कंपल्सन फिर भी जैम ही है लेना,
तो वो दिक्कत नहीं, इसमें तेजवीर साहब ऐसा है ना कि जेम का जो प्राइस है उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है, जेम नहीं का कई एस्टिमेट कई फाइनल बार होता है। कई बार ऊपर से आता है कि भी मार्केट प्राइस भी इसमें साथ लगा के भेजो। अब मार्केट प्राइस नॉर्मली हम वेंडर से लेंगे लोकल से तो वो सस्ता देगा, जी और जेम पे होता है हाई प्राइस, तो वो दिक्कत है। फिर उसको कोट मार्केट प्राइस हम कर ही नहीं सकते जब मार्केट से लेना ही नहीं। नहीं, वो वही मैं बोलने वाला था कि जेम तो देखिए मैंडेटरी है, और जेम जब मैंडेटरी है तो फिर हमें इस तरह के डिस्कशन में जाना ही नहीं है। अब वो तो देखिए अब एक आधी PM बार ऊपर से आ जाता है लिख के ए ऑफिस से या कहीं से, वो तो हाँ अपनी फाइनेंशियल वो देखते हैं तो कि भी इसको मार्केट से कंपेयर करके दो, और मार्केट वाला कोई बेवजह कोटेशन क्यों देगा जब सामान नहीं लेना जी है। और इवन हमने सर टेंडर भी जो रेट आती है उसमें भी ये क्वेश्चन रेज होता है कि इसको इस रेट को जो L1 आया है इसको भी कंपैरिजन करके दो मार्केट से। हाँ हाँ दैट हाँ इज अ नॉर्मल प्रोसीजर इन BBMB। नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं पूछना चाहिए। जो भी जी जेम जी में रेट्स अप्रूव होता है, I mean, ऐसा नहीं कि कोई भी वेंडर जेम में रेट्स डालेगा, ऐसा नहीं होता है। उनका भी एक ड्यू प्रोसेस अप्रूवल करने का रेट का। ऑल द रेट्स अब जो भी दिख रहा है उसमें पेनड्राइव का, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हो। अगर मान लो कोई, अगर मान लो इधर देखिए HP 128 GB का पेनड्राइव का कास्ट दिखा है 2650। सो एक स्टैंडर्ड रूल है जेम में, द कास्ट ऑफ एनी आइटम शुड नॉट बी मोर देन MRP। एक स्टैंडर्ड रूल है, मतलब तो अमेजन में सस्ता होगा या फ्लिपकार्ट और भी सस्ता हो सकता है, लेकिन जो भी सेलर अप्रोच करेगा जेम के पास, और वो जेम उसको ये करेगा, मतलब उसका रेट जो भी है उससे सस्ता होना चाहिए। वन मोर थिंग सर, एक हाँ 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 हमारे लिए ये होता है कोई भी जैसे LED वगैरह परचेज करनी है, हाँ हाँ। स्पेसिफिकेशन तो डाल देते हैं लेकिन मेक स्पेसिफाई नहीं कर सकते। अब आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा था सर, जैसे LED परचेज करनी है तो हम इसमें क्या होता है MSME को और इनको एनकरेज करने के लिए ये रूल है कि भाई मेक स्पेसिफाई मत करो। हाँ वो तो है। तो मेक स्पेसिफाई नहीं करते सर, वो लोकल आती हैं उसी रेट में आती हैं जो ब्रांडेड है, और वे खराब जल्दी हो जाती हैं। वो तो है, एक कॉमन प्रॉब्लम तो है वो ये एक्चुअली। एक इशू है कि हम एक घटिया माल और बेटर प्राइस में ले रहे हैं, महंगे माल में, महंगे रेट में। इसमें देखिए सर क्या होता है कि देखिए, मतलब ये बेसिकली हम लोग तो जेम से नहीं है, तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं ओपनली, बिकॉज ये जो जेम प्लेटफॉर्म है इसको पॉपुलर करना है हम लोगों को। तो हम लोगों को पॉपुलर इससे भी करना है कि जो आपके लोकल वेंडर हैं जो पहले ऑफलाइन दे रहे थे, तो आप उसको प्रमोट करिए कि आप जेम पे आ जाओ। जैसे आपने बताया कि वो लोकल प्राइस जो है कम है उसका, तो आप उसको जेम पे गाइड करिए और उसको बोलिए कि आप यही प्राइस जेम पे दे दो हमें। तो हमारी भी जिम्मेदारी है जेम को पॉपुलर करने की। वो तो है सर, पर वही होता है ना सर, क्योंकि देखो डिवीजन वाइज या सब डिवीजन वाइज रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी बल्क नहीं होती जी है, और उसमें एक छोटी सी क्वांटिटी के ऊपर ना तो कोई रजिस्ट्रेशन के लिए वो होता है राजी, और ना ही कोई कोटेशन देने के लिए। जैसे L1 का उन्होंने कहा ना अभी कि L1 में भी ये कहते हैं मार्केट कंपेयर करके दो। नहीं, एक्चुअली आई डोंट नो व्हाई इट इज बीइंग आस्क्ड लाइक दैट, लेकिन ऐसा नहीं पूछना चाहिए कोई भी। इंक्लूडेड इन दिस सेमिनार, जिनको एक्चुअली नॉलेज नहीं है लेकिन वो जो मेथड उसी से इनको चलाना चाहते हैं। हम लोग कंपैरिजन करके देते हैं प्राइस को लोकल एक्चुअली मार्केट उन से लोगों को ये कंपेयर भी किया बता जाता सकते है। हो आप लोग, जो भी बायर होगा जेम में, अगर वो कोई भी मतलब L1 निकल के लेके जा रहा है, उसका जिम्मेदारी बायर के ऊपर ही होता है, नॉट ऑन द अप्रूविंग अथॉरिटी। उसको ये आप लोग कन्वे कर सकते हो। लेकिन बायर ना कर पाता, एओ कराना पड़ता ना सर उसको। हाँ वो एओ लगाता ऑब्जेक्शन की आपकी ये जस्टिफाई कीजिए। सर L1 को क्या अकाउंट वालों को justify किया? कौन करेगा सर, वो जो मानते हैं तो देना पड़ता है। नहीं, ये तो दिस नहीं इज देना पड़ता सीरियस इश्यू एक्चुअली। अगर प्राइवेट से कंपेयर करेगा तो कोई मतलब ही नहीं है जेम का। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ सर, फिर उसमें तो कुछ मैं और कंपल्सन ये हाँ, जेम से ही वही लेना, तो फिर कंपेयर क्या करना। नहीं, अगर आपने कोई भी अपने L1 निकाल रहे हो तो आपके ऊपर वो इनडायरेक्टली जिम्मेदारी बनता है, नॉट ऑन द अप्रूविंग अथॉरिटी, नॉट ऑन द फाइनेंस पीपल।
और जिम में जो भी रेट्स है मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी डालेगा, उसका भी अप्रूवल प्रोसेस होता है उसका भी। यस सर। सस्ता तो हो सकता है लेकिन दे कैन नॉट कोट हायर प्राइस ऑन जिम। एक्चुअली यस सर। पे लिख के नोट शीट पे लिख के आता है, मार्केट रेट से कंपेयर कर, दे विल आर नॉट इन दैट केस अकाउंट्स पीपल को पूछ लीजिए सर जिम गाइडेंस में कहीं भी लिखा नहीं है करके मार्केट से कंपेयर करना है करके, सिंपल। ओके सर। जिम का कई तो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में ये सकते हैं लिखा ना। नहीं है कि जो भी बायर है वो मार्केट से कंपेयर करके लेना है करके। मानते नहीं, कहते हैं भाई जो ओके सर। एओ ने बोली वो कंप्लायंस करके दो। नहीं उसको खुद ही आपने सवाल कर लीजिए, फिर जो सवाल करते हैं उससे उल्टा सवाल पूछना, तभी वो लोग चुप हो जाएगा। कई जगह हायर अथॉरिटी से ज्यादा कुछ नहीं किया जाता। ऐसा लेटे सर वो इतना मटेरियल सकता। जी 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 सर हेलो। हाँ राव साहब बताइए। सर वन मोर डाउट सर, आप लोग तो ये बता रहे हैं लेकिन अभी ऑर्डर करने प्लेस करने के लिए गया तो जिम में तो रेट सर्टिफाइड करने के लिए पूछ रहे हैं। आप मैं सर्टिफाइड वही पूछ रहा कीजिएगा। हूँ, जो भी बायर करेगा बायर के ऊपर ऑटोमेटिकली जिम्मेदारी बनता है। वही सर वही जेम से फिर हम कैसे सर्टिफाइड करेंगे? जेम का रेट और मार्केट रेट से सर्टिफाइड करेंगे। रेंट रीजनेबिलिटी के लिए सर्टिफाइड मांग रहे हैं थ्रू फॉर बायर व्हाइल प्लेसिंग द ऑर्डर। हाँ वो तो है, वो तो एक इश्यू तो है एक्चुअली, वी आल्सो नोटिस्ड फिर एक्चुअल। फिर हम लोग अभी सर्टिफाइड करके देने से अभी रेंट रीजनेबल ठीक है, लेकिन एज पर मार्केट रेट्स तो वो तो कम अवेलेबल है। लेकिन हम जब सर्टिफाइड करने से हम लोग ऑर्डर प्लेस करने के टाइम हम सर्टिफाइड करने से हम हमारा ऊपर जिम्मेदारी हो जाता है, हम आप लोग सर्टिफाइड किया बोलते। वो तो है मतलब, लेकिन जनरली गिवन ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली ये होता है कि आप जो भी जिम से लेते हो जनरली उसके ऊपर कोई ये नहीं करता है मतलब रेट ज्यादा है ये है करके। प्राइम फेसियर मतलब आपके ऊपर कोई सवाल नहीं उठता है कि आपने बहुत महंगा रेट से लिया है करके, क्योंकि हर एक ऑफिस में यही हो रहा है, उनको भी खुद को पता है जिम से जो भी आइटम होता है थोड़ा महंगा ही होता है इन कंपैरिजन टू लोकल। तो मेरे का हमारा ये सब ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर, लेकिन ये क्या प्रॉब्लम हो जाता है, ये अकाउंट्स वाले के पास गया ना उसमें दिक्कत हो जाता है सर। वो वाला मानता नहीं है और कभी कभी कुछ कुछ चीज जेम में लेने के लिए भी बोलते थे और कुछ कुछ चीज जेम में लेने के लिए गया तो फिर ये रेट ज्यादा है ऐसा भी बता देता है। नहीं इन दैट केस प्लीज प्लीज उसको बोल दीजिए रेट्स होगा तो सर आप लिख के दे दीजिए, वी आर गोइंग टू परचेज फ्रॉम द मार्केट, लोकल मार्केट। Generally, no one is authorized except giant secretary in a particular department. No one is authorized to, to recommend procure any item outside the gem. Yeah, right, sir. Previously, the rent reasonable certificate के लिए कुछ वो मांगता नहीं है सर, लेकिन अभी 6 months के before वो rent reasonable के लिए वो मांगता है हर बार। This is the one issue actually. This is the one practical issue which everyone has to look into it. वो तो है, जो भी जम मतलब कोई भी बायर ऑर्डर प्लेस करेगा डेफिनेटली वो क्लिक करना होता है स्टेटिंग दैट द रेट इज इन अकॉर्डेंस विद द लोकल मार्केट एंड ऑल। वो थोड़ा बायर के साइड के बायर के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी दे रहा है, वो थोड़ा ये तो है इश्यू तो है उसमें that we'll have to look, like escalate this issue to like GEM authorities. Yes sir, that's what इसमें श्रीनिवास मैं थोड़ा कुछ ऐड करना चाहूंगा। हाँ सर बताइए सर। मोस्ट श्रीनिवास बेसिकली देखिए क्या होता है कि जो हम कोटेशन बनाते हैं, कोई भी कोटेशन होता है बेसिकली जो प्राइस अप्रूव हम कराते हैं ना, तो कोटेशन भी जो है L1 प्राइस होना चाहिए। तो डब्ल्यू का जो कहना है कि कंपैरिजन के लिए, तो इसका एक सॉल्यूशन ये है कि जेम का जो आप प्राइस ले रहे हैं आप उसी में 3 डिफरेंट प्राइस लीजिए और जो लोएस्ट वन है उस पे कोटेशन आप आगे अप्रूव करिए, तो आई थिंक इससे बेटर होगा। अदरवाइज डब्ल्यू को भी कंप्लाई करना मस्ट होता है बिकॉज डब्ल्यू जो होता है एफओ होता है वहां का। तो अगर इसमें जो बीबीएमबी कौन से प्रदीप साहब बोल रहे थे ना अभी, नहीं उनका तो ठीक है सर, उनका इश्यू अलग है। आपने जो बोला वो टिल के ये का हक बनता है चेक करना, मैं उसमें ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आइटम जिम में मिल रहा है वो बाहर मार्केट से कोटेशन से कंपेयर करना थोड़ा हार्ड लग रहा है। नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, जब ये हम 3 प्राइस कोटेशन जो है कंपेयर करके ही देंगे पहले से ही, तो आई थिंक वो इशू आएगा ही नहीं कंपैरिजन वाला बाहर वाला। क्योंकि सर अगर मान लो इवन जीएफआर में रूल में क्लियरली है जो आइटम 25,000 से कम है जनरली वी कैन गो फॉर ए सिंगल कोटेशन, उसमें इतना करने की जरूरत नहीं मतलब। हाँ वो सब टाइम का बात है सर, आई अंडरस्टैंड, लेकिन कभी कभी क्या होता है वी हैव टू लुक एट द टाइम आल्सो।
even for procuring a pen drive of somewhere around 3,000, and if you do this kind of exercise, then it hugely impact the the procurement process. And बेसिकली वहाँ इंटरनल क्या है वर्किंग कंडीशन ये भी तो हम नहीं जानते हैं, that's true. That is इसीलिए true. That is true. हम वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू कमेंट ऑल दोस थिंग्स। Yes, 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 yes. That we cannot. जी, तो बेसिकली ये जो पेन ड्राइव का इशू है, जो अभी स्क्रीन आपको दिख रहा है अमेजन का, ये मैंने खोला हुआ है सर। यस ओके। सर। अब ये आप देखें जो प्राइस वहां पे HP USB 3.1 है, इसका प्राइस 1500 है, ठीक है। बट ये जो है इसमें OTG टाइप नहीं है, ये आप देखेंगे इसमें OTG टाइप नहीं है। बेसिकली जो पेन ड्राइव आपको मोबाइल में लग जाता है उसको OTG बोलते हैं, C टाइप। आजकल तो चेंज हो गया ना सारा। तो आप जो यहाँ पे ले रहे हैं 26,500, सबसे पहले तो ऑटोमेटिकली ये होता है कि जेम पे इसलिए प्राइस ज्यादा होता है कि HP डायरेक्ट सेल नहीं करता है कोई प्रोडक्ट, वो रीसेलर के थ्रू करता है। तो जब वो रीसेलर के थ्रू करेगा तो अपने आप जो है मार्जिन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्राइस हमेशा हाई होता है। और जो लोकल वेंडर होते हैं जिनका मान लीजिए कुछ भी देना है डायरेक्ट कोटेशन में, जो आप साहब कह रहे थे कि कुछ भी दे जाता है हमें, तो अल्टीमेटली वो जेम के कंडीशन को कंप्लाई करता है और जेम ने उसको रजिस्टर कर दिया है, तो फिर आपको लेना ही पड़ेगा। तो बेटर है पहले से ही अगर हम ये क्वालिटी को फिल्टर करके हम पुटअप करें, प्रपोजल ही ऐसा बनाएं कि बाद में कोई दिक्कत ना आए। तो जो हम अमेजन पे देख रहे थे सिमिलर, देखिए आप 1995 का है, यहाँ पे जेम पे प्राइस है, और अमेजन पे यही वाला प्राइस आप देखें 1504 है। तो प्राइस तो जेम पे हमेशा होगा ही, बिकॉज जेम जो है एक अपना भी जेम अथॉरिटी है, उनका भी कुछ रहता होगा। तो आई थिंक वी शुड नॉट गो इनटू ऑल सच डिस्कशन, बिकॉज हम जेम को ही क्वेश्चन करने लगे फिर से। तो जेम तो GFR का पार्ट है, मैंडेटरी है, GFR से करना ही है हमें। यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो बताइए यहाँ तक। यस राव साहब बताइए। जी सर, इसमें सर टाइम ऑफ सप्लाई का कोई फिल्टर है सर? क्योंकि जैसे हमने एक प्रिंटर ऑर्डर किया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल, और ऑर्डर करने के बाद में उसमें आया है कि इट विल बी गेट सप्लाइड ऑन 22 मार्च। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त इतने महीने वेट करना पड़ेगा। तो क्या उसमें कोई ऐसा फिल्टर है कि ताकि हमारा इमरजेंसी? नहीं, डिलीवरी पे फिल्टर नहीं है, बिकॉज वो एक्सटर्नल फैक्टर है बियॉन्ड आवर कंट्रोल। क्योंकि हम जनरली बाहर में जब सप्लाई ऑर्डर देते हैं तो हम लिखते हैं कि सप्लाई विद इन 15 डेज, इस तरह लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है। वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि ऑर्डर प्लेस करने के बाद में पता चलता है कि बहुत दिन बाद देगा। नहीं तो जब कैसे आप करेंगे? उसको ऑर्डर कैंसिल प्लेस करना करने होते पड़ेगा। हैं, वहां पे 15 दिन का है ना डिलीवरी का, 15 दिन डाल दीजिए वहां पे। वहां पे ऐसा होता नहीं सर, कुछ इस तरह होता है, मैंने देखा है। आप जरा वो भी दिखा दिए सर। जब हम कोई ऑर्डर फाइनल प्लेस करेंगे तभी आप देख पाएंगे, अदरवाइज अभी डेमो जी सर, तो मैं ऑर्डर नहीं फाइनल दिखा प्लेस करने के बाद में वो जो सप्लायर जो है वो जो डेट हाँ। देता है वही मालूम पड़ता है। नहीं, आपका जो बिड, जैसे आपने कैसे लिया, ये बिड से लिया या डायरेक्ट ऑर्डर लिया? ये बिड के थ्रू, ये बिड के थ्रू था सर। हाँ, तो बिड में तो जब आप बिड क्रिएट करते हैं वहां पे सप्लाई देना पड़ता है ना, 15 डेज 30 डेज। तो आपने क्या दिया था उसमें? बिड डॉक्यूमेंट में देखिए, उसमें 30 डेज होगा। तो अगर आपको मान लीजिए वो डिले कर रहा है तो आप LD चार्ज लगा दीजिए उस पे। वो सर ये L1 के हिसाब से था सर, 3 से हाँ, तो कंपेयर भी करके। L1 है तो भी आपको डिलीवरी टाइम बिड में देना पड़ता है। अगर आपके पास अभी बिड है तो देख लीजिए, अभी डाउट क्लियर हो जाएगा। लंच बाद देख पाएंगे सर। जरूर, कोई बात नहीं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, तो फिर मैं आगे कोई कंप्यूटर वगैरह प्रोक्योर करके दिखाता हूँ। क्या लेना है बताइए प्रोडक्ट कंप्यूटर का। हेलो हाँ सर, अभी सिंगल प्रोडक्ट 2 कंसाइनी को ऐड करना है, तो पहला कुछ होता था सर, 2 कंसाइनी 3 कंसाइनी ऐड कर सकता है, लेकिन हाँ, अभी भी अभी होता है।
नहीं, अभी उन्होंने मना कर दिया है। थ्रू बिड और आरए के लिए कंसाइनी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी डायरेक्ट प्लेसिंग के लिए कंसाइनी सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे सर। हाँ, तो आप डिफरेंट ऑर्डर क्रिएट कर लीजिए अलग अलग कंसाइनी के लिए। वो भी एक दिक्कत हो जाता है। और वो क्या बोल रहा है, एक ही प्रोडक्ट 2 कंसाइनी के लिए ऑर्डर करने से अलग अलग ऑर्डर हो जाता है। वो भी 7 डेज के अंदर सेम प्रोडक्ट आप खरीद नहीं कर सकते है, ऐसा बोल के आ रहा है सर। अच्छा, Within, if it is greater than 25,000, if the product is same, we can't place the order within 7 days, sir. It will ask. तो You have उसमें order. क्या है कि जिससे भी आप ले रहे हैं, एक तो तरीका ये होता है कि जैसे किसी नॉन वेंडर से आप ले लीजिए और उससे कंपैरिजन से ले लीजिए, और एक अपने जहाँ पे भी आप हैं एक जगह मंगवा लीजिए, या वेंडर को बोलिए वो दे आएगा वहाँ पे। ज्यादा दूर है क्या लोकेशन वहाँ से? सर वही कंसाइनी मतलब अलग अलग डिस्टेंस हो जाएगा सर। मतलब हमारा सब डिविजन के लिए डिलीवर करना है तो 200-400 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता है। लेकिन वो डिलीवर नहीं करेगा सर, वो इसके वजह से प्रॉब्लम होता नहीं, तो इट्स बेटर टू मेक 2 डिफरेंट प्रपोजल, है ना, फॉर 2 डिफरेंट कंसाइनी लोकेशन, और यू कैन प्लेस द ऑर्डर डिफरेंटली, सेपरेटली। That is what I am telling, sir. Within 7 days, we can't place the same order. If we want to procure the printer for 2 subdivisions, same model. Okay, I think this is the latest feature. Yeah, Gem has added. latest, sir. And one more thing, we can't bunch the item also. Previously, Yeah, we bunching can has bunch been disallowed. Yes. For each and everything. If I want to purchase a pen for rupees 5,000, then we have to raise a separate bill for 5,000. Again, eraser for 2,000. Again, the bunching of item is also they have removed it from this gems. Actually, that was mainly due to one seller was not able to supply all the things, because for the bunch being, suppliers should be same. So previously the option was there. If you are ordering bunching, those supply what are the available items with them, we can bunch, sir. But now it is not possible to bunch because of that. The same for cartridge, I am telling, sir. If now I have ordered a cartridge for our printer, for each and every color we have to add separately, but the buyer is the seller is the same, but they have to parcel each and everything separately, sir. Okay. For each and black, magenta, cyan, everything they have. Seller is the same, but I have ordered four different items, and I have raised the bill for pass. What is the problem is we have to pass each and every bill separately. For 7,000 we have to pass it, and even DD also they have to pass it. It is a separate. It is a tedious job, and it's a time-consuming process also. I think one solution to this, maybe you have to invite some local vendor. You have to get him on board to the gem, and he can supply you all these items through comparison. कंपेयर कैसा करेंगे सर? कंपेयर होता है, जो वेंडर आपको देगा ना वो कंपेयर करके देता है। मतलब डिफरेंट आइटम कैसा कंपेयर करेंगे वही बता। नहीं, डिफरेंट आइटम तो आपको हमेशा अलग ही लेना पड़ेगा, वो तो डिफरेंट ऑर्डर से हम लोग भी वैसे ही कर रहे हैं। लेकिन पहला बंचिंग होता था ना सर, मैं वही बता रहा हूँ। अभी 25,000 तक हम बंचिंग कर इनफैक्ट सकते हैं। बंचिंग भी जो था आपको, दैट वाज लिमिटेड। अगर एक सेलर है वही डिफरेंट आइटम दे रहा है तभी होता था। कंसाइनी भले आप डिफरेंट कर लें। तो अब तो जो जेम का फीचर है हमें वही यूज करना पड़ेगा। आपको कुछ पॉसिबल हो तो ये फीडबैक जेम के लिए थोड़ा दे दीजिए सर, ये बहुत दिक्कत हो जाता है सर। फीडबैक तो हम लोग क्या कोई भी दे सकता है। जेम का जो ओपन प्लेटफॉर्म है, और कोई भी एज ए कंसाइनी बायर कोई भी डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं हम लोग, तो वी कैन गिव देम फीडबैक। ओके सर। तो हम लोग कंप्यूटर का करें अभी।
अब यहाँ पे देखिए जो हमने कंप्यूटर के लिए वो किया है, सबसे पहले आपको जो भी पैरामीटर है वो लेना है। तो हमने मैक्सिमम जो गोल्डन पैरामीटर था वही लिया है। गोल्डन पैरामीटर जब हम ले रहे हैं, सपोज मॉनिटर टेक्नोलॉजी हमने सेलेक्ट किया, मॉनिटर रिजोल्यूशन किया, नंबर ऑफ कोर्स पर प्रोसेसर किया, तो इसमें देखिएगा मात्र जो है यहाँ पे 8 कंप्यूटर ही आ रहे हैं और 8 कंप्यूटर जो है कोई लोकल मेक का आ रहा है, जिसकी रेटिंग भी आप देखिए काफी खराब है, 3.88 है, 1.92 है। तो बेसिकली एज ए बायर हम लोग क्यों लेना चाहेंगे ये प्रोडक्ट, क्योंकि एज ए बायर हम लोग अगर देखें तो हमारे पास जो होता है HP लेते हैं हम लोग, या डेल लेते हैं, या बहुत लेनोवो लिया हमने, बाकी तो कोई प्रोडक्ट हम लेते नहीं है। तो आपको यहाँ पे फिल्टर आउट करना है। जैसे अब बिलो 5 लाख है तो मैं कंपैरिजन करूंगा इसका। आप देखिए मैं कंपैरिजन करता हूँ, एक ये वाला मराठा, फिर एक मैंने डेल का किया, दूसरा ये RDP का किया। अब आप देखिए ये तीनों में जो है स्टार्ट जब कंपैरिजन करते हैं तो आप देखिए ये जो है 2 कंप्यूटर का हमने ऑर्डर किया है। 2 कंप्यूटर, ये i5 कंप्यूटर है और ये 1,52,000 में 2 कंप्यूटर आ रहा है, जो आपको नहीं चाहिए बेसिकली। बट कंपैरिजन जब हम पैरामीटर का करते हैं तो रैम साइज, टाइप ऑफ रैम, रैम स्पीड, ये सारे सबके सेम है। तो यहाँ पे जेम का ये मेन कंसर्न है कि क्वालिटी जो है आपको सेलेक्ट करने के लिए जो बायर का कंट्रोल है वो नहीं है आपके पास अभी। तो आप में से कोई कंप्यूटर परचेज किया है अभी जिसको प्रॉब्लम आई हो, कुछ ऐसा बताएं, शेयर करते हैं हम लोग। यस सर, अभी किया सर परचेज, वो आपने AES के लिए भेजा था सर। नहीं, जैसे AES के लिए तो भेजा आपने, जो जैसे फाइनल ऑर्डर किया आपने। यस सर, फाइनल ऑर्डर किया था, लेकिन वो क्या, जो उसका बिड वैलिडिटी टाइम होता है वो एक्सपायर हो गया था, तो कॉन्ट्रैक्टर ने, वो एजेंसी ने सर मना कर दिया था देने से कि आपका बिड टाइम के लिए यदि आप भेजोगे। और इसमें क्या अप्रूवल चेयरमैन सर का है सर, 75,000 का है एक कंप्यूटर का। ओके, हाँ। तो सर जब तक अप्रूवल नहीं आया था सर हमारा वहाँ चेयरमैन साहब से वहाँ से, तो उसने एजेंसी ने मना कर दिया था कि मैं अब दे नहीं पाऊंगा। उन्होंने एक बार बिड वैलिडिटी टाइम बढ़ा दिया था सर। उसमें क्या हुआ था सर, जब AES का जब बना के दिया था यहाँ से स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, और जैसे दोबारा AES आने के बाद में हमने डाला, कंप्यूटर का बिड किया था कंपेयर करने के बाद में, तो सर उसमें क्या हुआ कि सेम स्पेसिफिकेशन जो हमने AES लिया था उस पर हम बिड नहीं कर पा रहे थे सर। तो उसमें सर कुछ पैरामीटर चेंज कर सकते हैं क्या सर, AES के अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिकेशन जो AA एंड ES लिया तो जो गोल्डन पैरामीटर होता है हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, और जो नॉन गोल्डन पैरामीटर है उसमें आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन सर उसकी कुछ टाइम लिमिट सर, आइटम क्या लोकल आ रहे थे सर, HP का हमने बना के दिया था उसमें स्पेसिफिकेशन के अंदर, और जैसे ही जब तक अप्रूवल आया तब तक वो सेम स्पेसिफिकेशन पे देने के लिए कोई भी एजेंसी तैयार नहीं थी सर, और लोकल आइटम आ रहे थे जो नाम भी नहीं सुने हैं ऐसा लगता। अच्छा, ये कितने का था कंप्यूटर आपका? ये सर 71 के था सर, 4,31,000 का था, 6 कंप्यूटर थे टोटल। तो ये आपने कंपैरिजन से क्यों नहीं ले लिया? सर कंपैरिजन से ही लिया था सर। कंपैरिजन तो वेंडर कभी भी कर देगा, उसमें क्या है। लेकिन सर ये पार्ट्स, वो वेंडर से बात की तो वो कह रहे हैं कि पार्ट्स ही अवेलेबल नहीं है, इस तरीके से कुछ नहीं, तो आप फिर AA एंड ES वापस जो बोलिए उसको कि जो अवेलेबल है तुम्हारे पास उसका वो बता दो, हम AA एंड ES ले लेते हैं दोबारा। लेकिन सर उस कंडीशन में अभी क्या, मार्च में फाइनेंशियल चेंज हो गया था, तो हमें क्या, जो जिस हेड में पहले मिला था ना सर फंड, हाँ, MND IT में, तो इस बार क्या MND IT हमें मिला नहीं है, वही IT में
के लिए भेजा था सर, तो वो शायद रिवाइज करवा रहे हैं सर अभी, के रिवाइज करके ही आपको वापस से पुटअप करना होगा। ओके, ठीक है। इसका तो सॉल्यूशन, क्योंकि जैम का जो है ना एवर चेंजिंग सिचुएशन है। यस सर, हर 10-15 दिन में चेंज होती रहती है सर इसकी। तो वही है कि हम लोग जेम के साथ अपने आप को, अब क्योंकि गवर्नमेंट वॉल्यूम ने सर। कहा है करना है, तो फिर हाँ प्लीज बताइए। हेलो हेलो बताइए। वॉल्यूम। हाँ गर्ग साहब बताइए। हेलो। हाँ हाँ बताइए। हाँ सर, एक केमिकल में और इशू आ रहा है सर हमें, ये बीओक्यू किया था सर, तो हाँ उस पे आते हैं हम, उस पे आएंगे। आपका वो इशू हम अलग से करते हैं, अभी हम कंपैरिजन और डायरेक्ट वाले पे करते हैं। ओके ठीक है। तो अभी जो डबल एओ का कंसर्न था, जिन किसी ऑफिसर ने वो रेज किया था, तो आप देखिए जो प्राइस कंपैरिजन जब अगर आप इस तरह से बना के देंगे ना किसी को, तो वो क्वेश्चन नहीं करेगा, बिकॉज आपने ऑलरेडी 3 प्रोडक्ट को कंपेयर कर दिया है। तो यहाँ पे आपका जो ये ऐड टू कार्ट वाला है, आप इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, जब ऐड टू कार्ट करेंगे तो डायरेक्ट परचेज का ऑप्शन आएगा। अब ये वाला जो आइटम है, इसको आप इसके लिए AANES जो है, इसका प्रिंट ले लीजिए आप। कहाँ पे है? मैंने कंपैरिजन का जो है एक पीडीएफ बना के आपको ग्रुप में शेयर कर दिया है। अभी ये ब्राउजर दिख रहा है आप लोगों को? बोलिए। ये सपोज हम एक बैटरी खरीदना चाहते हैं, तो बैटरी के लिए मैं एक कंपैरिजन करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मटेरियल ऑफ द कंटेनर जो है गोल्डन पैरामीटर है, तो इसको एफआरपी लेते हैं हम। इसकी रेटेड कैपेसिटी जो है एट C20 डिस्चार्ज 65 एम्पियर। टाइप ऑफ लीड एसिड ऑफ बैटरी, ये लीड एसिड स्टोरेज बैटरीज फॉर मोटर व्हीकल्स।
and batteries without buyback. यहाँ पे अभी देखिए किसी ने पूछा था मुझे बायबैक के लिए, तो यहाँ पे देखिए बैटरी में ही बैटरीज विथ बायबैक है, बैटरीज विदाउट बायबैक है। आई थिंक राव साहब ने पूछा था। तो टाइप्स ऑफ, यहाँ पे देखिए गोल्डन पैरामीटर में टाइप्स ऑफ लीड एसिड ऑफ बैटरी, ये दिख रहा है स्क्रीन आप लोगों को? हाँ सर दिख रहा है सर। हाँ, इसमें आप देखिए यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उसको, ये देखिए बैटरी। तो आपका तो ये आई थिंक जो क्वेरी था ये रिजॉल्व हो गया, विथ बायबैक है, आप यहाँ कर सकते हैं आप। अब आप देखिए यहाँ पे हमने क्या है कि हमारा एक डिवीजन है तवांग में, अरुणाचल प्रदेश जो चाइना के बॉर्डर के पास है, तवांग डिस्ट्रिक्ट, तो वहां पे एक सब डिवीजन है। तो एक हमारे जेई है, उनका कंसाइनी लोकेशन जंग का है तवांग में। तो जब हमने कंसाइनी लोकेशन वहां का सेलेक्ट किया तो आप देखिए ये नहीं, कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो ये जेम का लिमिटेशन है। अगर मान लीजिए कोई रिमोट एरिया है, हिली एरिया है, आप वहां पे प्रोडक्ट डिलीवर कराना चाहते हैं, तो ये आपको नो प्रोडक्ट्स फाउंड फॉर योर सर्च आएगा। अब इसके लिए आप अगर जेम को लिखते हैं कि आप यहाँ पे हमें दिलाइए, तो आपका जो है जो पूरा टाइमलाइन है वो चला जाएगा, फिर आप टारगेट मीट नहीं कर पाएंगे। तो ये सब जो केस है आप इसको जस्टिफाई करते हुए ऑफलाइन में ले सकते हैं। बताइए। तो मैं इसमें कंसाइनी चेंज करूंगा अभी। अभी देखिए हमने जो है ईटानगर में इसका किया, वो भी वहां पे नहीं दिखा रहा है। तो इस केस में अगर आप किसी वेंडर को, लोकल वेंडर को ऑनबोर्ड नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं होगा। अभी देखिए ईटानगर में हमने 2 कंसाइनी सेलेक्ट किया, लेकिन दोनों में नहीं दिखा रहा है। अब मैं एक झारखंड का करता हूं। विकास का है क्या? आपको कहाँ है इसमें? अच्छा, इसमें झारखंड। वहां भी नहीं है। तो आई थिंक ये वाला जो है, जब तक आप किसी लोकल वेंडर को जैम पे नहीं लाते हैं या किसी से पहले से आप बात कर लें तो वो कंपैरिजन नहीं करा दे, तो आप ये जैम पे आप नहीं कर पाएंगे बेसिकली। तो ये जेम का लिमिटेशन है, इसीलिए मैंने ये प्रोडक्ट वो किया था आपको। यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताइए। सर इसमें हमने इंस्टॉलेशन कहा था कि लगभग हमें 70-80 बैटरी लेनी पड़ती है, तो 70-80 बैटरी जो है पुराने बैटरी निकालना, नए लगाना, उसको चेक करा के वापस कराना। सो इंस्टॉलेशन इटसेल्फ टेक्स सम चार्ज, सो नहीं, तो दैट पार्ट इज नॉट देयर। पे जो है आप उसको बिड से लीजिए, कस्टम बिड होता है, उसमें कस्टम बिड में ये सब लिख दीजिए कि आपको इंस्टॉलेशन चाहिए। ओके सर। उसमें आप कर सकते हैं। सर यस सर, वैसे हमने खरीदा है सर, कस्टम बिड से किया है। जी जी।
सर आपने बताया था लोकल वेंडर को जेम में लाना है, वो हम लाएंगे और उनको बताना है आप जेम से रजिस्टर? नहीं, आप जरूरत आपकी है तो आप लाएंगे ना। हम कैसा लाएंगे सर उनको? बिकॉज गवर्नमेंट में आप हैं, आपको गवर्नमेंट में सामान लेना है। अदरवाइज ये एक्सक्यूज करते रहेंगे कि ये तो जेम पे नहीं है, और जेम पे गवर्नमेंट ने कहा है कि जेम पे खरीदना है। नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ, हम कैसा उनको जेम पे उनको बोलना पड़ेगा और हम ही खुद करके देंगे? उनको तो बोलना पड़, जैसे आपने ऑफलाइन उसको ऑर्डर दिया होगा ना, उसी ऑफलाइन ऑर्डर को दिखाते हुए वो जेम पे रजिस्टर करेगा एज ए सेलर, और जेम वाले उसको क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने ये प्रोडक्ट का मॉडल बताइए, आपने इसका परचेज ऑर्डर कोई लिया है वो बताइए, गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर है वो बताइए, आपका जो एक्सपीरियंस का क्लेम है वो बताइए, आपका जो टर्नओवर है वो बताइए। तो वो वेंडर एक्चुअली नहीं करना चाहता है। जेम पे जो भी वेंडर आएंगे उनका जीएसटी वगैरह पूरा क्लियर होना चाहिए। बिना जीएसटी के, बिना एमएससी के, बिना पैन के कोई रजिस्टर नहीं कर सकता है। तो मतलब इट्स आइदर साइड, ये ट्रांसपेरेंसी ऑन द बायर साइड और सेलर साइड दोनों है। तो कोई सेलर जल्दी तैयार नहीं होता है, इसीलिए हमारा रूल वहां आता है कि हमें उसको समझा बुझा के जेम पे लाना है। और ये OEM का भी प्रॉब्लम हो जाता है सर? ओईएम का प्रॉब्लम अलग से है। मतलब ये काफी कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज ओईएम जो होता है वो सिलेक्टेड रीसेलर्स को ही ऑथराइजेशन देता है। मान लीजिए वो अगर उसका रीसेलर नहीं है तो वो ऑथराइजेशन देगा ही नहीं। जैसे एचपी है, तो एचपी किसी सिलेक्टेड पार्टनर के थ्रू ही प्रोडक्ट देता है। कोई एक, जैसे मान लीजिए हमने अपनी कंपनी खोली और हम कहेंगे कि हमें एचपी का प्रोडक्ट देना है, तो वो हमें ऑथराइज ही नहीं करेगा। तो इसीलिए ये काफी चैलेंजिंग, जेम जितना इजी लगता है उतना चैलेंजिंग भी है। वन मोर क्वेश्चन, ये अपग्रेडेशन ऑफ सिस्टम्स हम लोग हमारा ऑफिस में पहला करता था सर, ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या जेम में? तो देखिए अपग्रेडेशन में मैं यही कहता हूँ कि अपग्रेडेशन कहने के लिए है, लेकिन हम तो उसका मदरबोर्ड चेंज कर देते हैं, सिस्टम का सीरियल नंबर चेंज हो जाता है, तो वो अपग्रेडेशन रहा कहाँ? वो तो ऑल टुगेदर यू आर बाइंग ए न्यू प्रोडक्ट। तो है सर, लेकिन ऐसा कुछ अभी बाईबैक का बैटरी का ऑप्शन है, ऐसा कुछ बाईबैक का सिस्टम लेके वो नया सिस्टम ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या? एक्चुअली कंज्यूमेबल का होता है बायबैक का इजिली, और कंप्यूटर वगैरह तो उसका स्क्रैप वैल्यू 0 है, कौन उसका वो करेगा। हाँ सनी जी बताइए, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? सर ड्यूरिंग वारंटी पीरियड यदि चीज खराब हो जाती है तो वो जेम से कैसे हेल्प मिलेगा? वारंटी मान लीजिए सर 1 साल की है और उस बीच में चीज खराब हो जाता है और जो वेंडर है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो जेम हेल्प करेगा सर? जेम तो हमेशा हेल्प करेगा, बस आप एक इंसिडेंट रेज कर दीजिए और आप उस वेंडर को कॉपी दे दीजिए तो आपको हेल्प करेगा। क्योंकि जेम जो है अगर कंप्लेन जाता है तो उसको डिफॉल्टर लिस्ट में डाल देता है वेंडर को। हेलो, हाँ बताइए सर जैसे हमने कोई मटेरियल परचेज किया तो वो समझ लो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ना रॉन्ग मटेरियल आ गया, जैसे जेपीएस सिस्टम में पेमेंट ऑलरेडी जो है चलेगी, तो जेम उसमें क्या हेल्प कर सकता है? एक बार फिर से समझाएंगे? सर जैसे हमने कोई आइटम परचेज की जेम से और वो कसाईनी के पास रॉन्ग मटेरियल आ गया और उसमें क्या हेल्प कर सकता है जेम? और रॉ मटेरियल दे दिया उसने, असेंबल नहीं किया। रॉन्ग मटेरियल, गलत मटेरियल। अच्छा रॉन्ग मटेरियल, ओके। तो रॉन्ग मटेरियल में क्या है कि आप सीआरएसी जनरेट मत करिए उसको। सर किसी से मतलब ऑटो जनरेट हो जाती है ना, जैसे कुछ दिन बाद। नहीं तो उस केस में इंसिडेंट रेज करना होता है। अच्छा,
जेम पे इंसिडेंट मतलब जो कंप्लेन है ना उसी को इंसिडेंट बोलते हैं। जेम पे इंसिडेंट रेज करिए तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सर जैसे बीबीएम किसी सेलर ने वो डिस्पैच मोड में डाल दिया सर, मटेरियल मिल नहीं रहा है सर, और ऑटो सीआरएसी जनरेटेड हो जाता है सर। हाँ जी सर, वो जीपीए पेमेंट है वो भी हो जाती है सर। हाँ तो जीपीए पेमेंट सिस्टम हाँ उस केस में आप जेम को बताइए कि ऐसा ऐसा पूरा उसको डिस्क्राइब करके बताना होता है। और मैं एक बताता हूँ आपको, रुकिए, कंप्लेंट जनरेट हाँ सर, करने का। एक इंसिडेंट, हाँ जी सर, एक इंसिडेंट क्रिएट करके बताइए। इंसिडेंट क्रिएट करके, रुकिए मैं बताता हूँ। पहले मैं आपको जेम के लॉगिन पे ले चलता हूँ। इंसिडेंट कंसाइनी भी रेज कर सकता है, बायर भी रेज कर सकता है, केवल बायर ही कर सकता है? कोई भी कर सकता है इंसिडेंट रेज। कंसाइनी से ज्यादा शायद बायर के लॉगिन में आता है ये। कंसाइनी नहीं कर सकता? कंसाइनी बायर तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन का है ना, तो बायर को रोल दिया हुआ है। अच्छा, तो नहीं, माल तो कंसाइनी के पास आता ना सर, रिजेक्ट होके माल कंसाइनी के पास रह जाता है। नहीं तो वो कंसाइनी सीआरएसी उसको जनरेट ही ना इन्फॉर्म कर करे। देता है बायर को। नहीं, अब जो सीआरएसी होता है जनरेट ना करे वो कंसाइनी करता ना सर। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि कंसाइनी जो है क्रैक जनरेट ही ना करे। हाँ वो तो नहीं करेगा सर, लेकिन वो ऑटो वाला जो प्रॉब्लम बता रहा है ना ये, हाँ उसको रोकने के लिए मतलब वो कौन एक्शन करेगा? मतलब बायर ही करेगा ना, तो वो कंसाइनी बायर कर और नहीं सकता। कंसाइनी में कोऑर्डिनेशन तो होगा ना इतना कि वो कंप्लेन कर सकता है एक दूसरे को। हाँ वो मतलब राइटिंग में उसको भेज देगा बायर को कि भाई दिस मटेरियल हैज बीन रिजेक्टेड। जी है ना सर? यहाँ पे ये आपको ब्राउजर दिख रहा है अभी? इसके फुटनोट में आप जाएंगे, अबाउट जेम, न्यूज एंड इवेंट्स, रिसोर्सेज, यहाँ पे आप जाएंगे ना तो कॉन्टेक्ट अस आता है। नीड हेल्प में कॉन्टेक्ट अस आता है, तो कॉन्टेक्ट अस में जाएंगे और यहाँ पे देखिए सपोर्ट है। ये सपोर्ट में जो ये वाला ईमेल आईडी है, आप इस पे कोई भी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करके भेज सकते हैं। और यहाँ पे जो प्रॉब्लम आप भेजेंगे वहां पे एक ट्रिक है कि यहाँ पे देखिए नीचे क्लिक हियर फॉर इम्पोर्टेंट फंक्शनरी डिटेल्स। तो इनके जो भी लोग फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो आपका डोमेन है, जिस नेचर ऑफ कंप्लेन है, अगर आप उसको देखें तो जैसे आपको बायर ऑफिसर, आप नीचे आइए, आप एक कॉपी उनको दे सकते हैं और वहां से रिस्पांस भी आता है। अगर जिसमें उनकी कॉपी को आपने, उनके किसी सीनियर को कॉपी आपने दे दिया, तो जैसे चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं तो एक कॉपी इनको दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम सीरियस है तो आप जेम के जो अथॉरिटी होते हैं, जो भी फंक्शनरी हैं, आप उनको दे सकते हैं। जेम एक्चुअली काफी इसके फीचर हैं जो हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं, अदरवाइज जेम तो काफी अच्छा है। एक क्वेश्चन था। बताइए सर ये सपोर्ट एक बार फिर से अगर आप समझाए, मैं ये थोड़ा मिस आउट कर गया। सपोर्ट वाला जो पार्ट है, अगर कंप्लेन रेज करना है सीआरसी हाँ जनरेट करने के पहले, ये वाला हाँ, पार्ट एक बार प्लीज एक बार दिखाइए। नहीं आप उसमें जो है ना, अच्छा ये वाला, हाँ सर, हाँ ये वाला। हाँ रुकिए एक बार मैं इसको, इसका जो आप वेब पेज खोलिए, मैं वेब पेज खोल रहा हूँ, ठीक है। जेम का जो मेन पेज है, सबसे पहले आप उसको खोलिए। अब ये वाला स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ सर।
अभी आप इसमें सबसे नीचे जाएंगे बॉटम पेज पे, हम्म, तो यहाँ पे आपको 3-4 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी। जैसे एक है रिसोर्सेस में आपको जेम का हैंडबुक है, ओएम सर्कुलर है, पॉलिसीज मैनुअल है। ये 3 हमेशा आप देखते रहें। ये आपको मैक्सिमम पेमेंट से रिलेटेड बायर जो भी इश्यू है सब इसका ओएम वगैरह इसमें कंपाइल्ड है। दूसरा है यहाँ पे नीड हेल्प क्वेश्चन मार्क है। जब वहां पे जाएंगे आप तो फीडबैक दे सकते हैं आप, जो क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम होनी चाहिए, लाइक इंस्टॉलेशन वाला या जो भी है, तो आप फीडबैक में दे सकते हैं। दे आर ओपन टू एनी सजेशन, है ना, क्योंकि हम लोगों के ही बायर के ही उससे उनका वो चल रहा है। फिर ठीक ये है आप देखें रेज ए टिकट, फिर आप जाएं कॉन्टेक्ट अस। तो कॉन्टेक्ट अस में आप जाओगे जब, हाँ बताइए कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं सर, मैं जेम खोल के यही आप जैसे बोल रहे हो वही कर रहा हूँ। ओके वेरी गुड। तो घोष साहब ये वाला जो आप जाएंगे ना, यहाँ पे सपोर्ट आता है। सपोर्ट में देखें आप मेल अस एट, तो जो भी इश्यू आ रहा है आपका helpdesk-gem@gov.in, तो आप इसको फ्रीली अवेलेबल, मतलब जो भी है प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करिए। अगर आपको मान लीजिए AAO का भी कुछ क्वेरी है उसको इसमें इनकलकेट करके आप भेज दीजिए। लेकिन एट द सेम टाइम जो अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम अर्जेंट है, इसको रिजॉल्व कराना काफी इसकी अर्जेंसी है, तो आप इसको जेम के जो अथॉरिटी वाले लोग होते हैं, जेम को तो कोई गवर्न कर रहा है, तो वहां पे जाइए आप, क्लिक हियर फॉर इम्पोर्टेंट फंक्शनरी डिटेल्स, क्लिक हियर में जाइए। आप चाहें तो इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो IAS हैं उनको भी कर सकते हैं एक वो, लेकिन बेटर है उनके नीचे जो लोग हैं जो जो डोमेन देख रहे हैं ना, जैसे वर्क एलोकेशन में आप देखेंगे तो वर्क एलोकेशन में सेकंड नंबर पे कंपनी सेक्रेटरी हैं, तो इनको नहीं देखना है। YK पाठक, इनसे आपका काम नहीं होगा। अभी जैसे राजेश जैन साहब हैं, है ना, HR एंड एडमिन। अब एडमिन का कुछ अगर आपको लगता है कि किसी उससे टाइम ज्यादा लग रहा है, अब जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट रिलेटेड इशू है, तो जैसे कोई कैटेगरी क्रिएट कराना है, मान लीजिए कोई मैंडेटरी है कि किसी ने फाइल पे लिख दिया आपको जेम से ही लेना है, तो आप ये सब कैटर कर सकते हैं उनको भेज के। ये जैसे आपके हो गए प्रोडक्ट कैटेगरीज ऑफर, सेलर एंड प्रोडक्ट कैटेगरीज ऑफिसर। तो अब आपको जो है मैनेज रिलेशनशिप विद ब्रांड्स एंड OEMs, तो जो अगर आपका जो भी नेचर है, प्रॉब्लम का नेचर, वो आपके वर्क एलोकेशन के हिसाब से जो भी कंसर्न पर्सन है, आप उनके ईमेल को एक कॉपी में डाल दीजिए, तो आई थिंक आपका प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगा। थैंक यू सर। यहाँ पे कोई इशू है यहाँ तक बताइए तो। सर उनके ईमेल कहाँ पर है सर? ये इसी में स्क्रॉल करिए राइट में, ये देखिए यहाँ पे दिखा आपको, ये देखिए अभी दिख रहा होगा। हाँ दिख गया दिख गया ना। यहाँ पे देखिए आप Yes. यहाँ पे ACO1-gem@gem.gov.in है ना। तो इसी तरह आप नीचे आएंगे, क्योंकि देखिए जब तक आप गवर्नमेंट में ना किसी चीज के लिए शोर नहीं मचाएंगे, तो गवर्नमेंट बहुत बड़ा सिस्टम है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो बेटर है आप अपना जो भी है सारा, आप जैसे मान लीजिए ये सीमेंट सर ये जो फर्नीचर, कंप्लेंट है ये ऑनलाइन फिलअप है या सेपरेटली लिखना पड़ेगा ईमेल? ये तो आपको एक मैंने दिखाया ना अभी, एक ईमेल मैंने बताया, अभी मैं फिर से दिखा देता हूं आपको। कॉन्टेक्ट अस में जाइए और ये देखिए ईमेल है यहाँ पे, मेल अस एट helpdesk-gem, ये वाला, ये ईमेल आप हमेशा कर सकते हैं। अदरवाइज कोई जनरल क्वेरी है तो जनरल क्वेरी जो है यहाँ से आप कर सकते हैं। टू रेज ए सपोर्ट टिकट, जैसे बिड वैलिडिटी एक्सटेंशन है, मान लीजिए आपने फाइनेंशियल बिड एक्सेप्टेंस के लिए भेजा, जब तक फाइनेंशियल बिड एक्सेप्ट होके आया नीचे, तब तक आपका ऑफर वैलिडिटी जो था वो एक्सपायर कर गया जेम पे। तो ये सब चीजें अगर आप एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो यहाँ से होगा टू रेज ए सपोर्ट टिकट, जो जनरल क्वेरीज हैं, जो जिसका ग्रेविटी बहुत ज्यादा नहीं है, अगर
तो ये आप यहाँ से इसको टैकल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेरी है तो बताइए, फिर मैं नेक्स्ट आफ्टरनून में कुछ कवर करूंगा फिर। बताइए। सर जो आपने जो कंपेयर करके दिया था कंप्यूटर वाला, हाँ हाँ, तो सर 75 से अब वो पावर जा रही है, तो क्या अप्रूवल मिलेगा उसमें? अरे नहीं नहीं, वो तो एक डेमो है ना, आप उससे कम वाले को लीजिए। अच्छा, आप ऐसा है, कोई गोल्डन पैरामीटर है जो आपका, मान लीजिए जो अभी आप कर रहे हैं ना, आप उसी को बताइए मुझे गोल्डन पैरामीटर, मैं यहाँ सेलेक्ट करके बाकी लोगों को भी दिखा दूंगा। ठीक है सर, 1 मिनट दिखाता हूँ। ठीक है, तो हम जो है प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज थ्रू जेम कस्टम बिट, तो सर्विसेज का हम शुरू करें या आफ्टरनून में करेंगे, बताइए। हाँ सर, हेलो, हाँ सर। हाँ, ये मैन पावर सर्विसेज का जेम पे बिट क्रिएट करें हम या आफ्टरनून में करेंगे? सर्विसेज का बताइए, मैन पावर के लिए आफ्टरनून का रहे सर। हेलो, हाँ जी, हेलो, बताइए। हाँ हाँ, बताइए। Please in afternoon. ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू, वी विल मीट अगेन इन द आफ्टरनून सेशन। एक क्वेश्चन था सर। हाँ बताइए। सर पूछना था कि अगर कोई प्रोडक्ट डिलीवरी होने के बाद हम सीआरसी में उसको रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या वेंडर को और एक मौका मिलेगा क्या उसको रिप्लेस कर देने के लिए या फिर से डिलीवरी करने के लिए? वो तो कभी भी कर सकता है। तो उसमें अगर मान लीजिए सर 15 दिन का जो इनिशियल डिलीवरी पीरियड चेंज मतलब एक्सपायर कर जाता है, तो उसमें क्या फिर से पीआरसी जनरेट होगा या सीआरसी जनरेट होगा, वो कैसे होगा सर? मेरे ख्याल से ऐसा हमने तो ऐसा कुछ इनकाउंटर आज तक नहीं किया है। जी, क्योंकि ऐसे केस में एक हुआ था तो हमने कैंसिल कर दिया था उसको। जी, हमने भी पहले सर ऐसा हुआ था तो कैंसिल कर दिया, लेकिन अगर आइटम अगर चाहिए ही है हमको तो क्या करें सर? तो उसको ये भी हो सकता है सर सामान डिलीवरी के टाइम में ऑन बोर्ड मतलब खराब हो गया हो या टूट गया, उसमें वेंडर का भी शायद कोई गलती ना हो, तो फिर भी वो रिप्लेस कर देना चाहता है, तो तब क्या करें? नहीं, तब तो फिर एक गुड आप अपना सीआरसी जनरेट कर दीजिए और बाद में वो कह ही रहा है कि रिप्लेस कर देगा तो कर देगा। हेलो जी जी, बताइए। सर अगर सीआरसी में मतलब नॉट एक्सेप्टेड बोल के अगर उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो फिर अगर सामान जनरेट होता है तो उसका सर बिल जनरेट होगा सर? नहीं, आई थिंक जब आपने रिजेक्ट कर दिया तो फिर तो उसके क्वालिटी पे क्वेश्चन हो गया ना, तो मेरे ख्याल से। हेलो सर, ये एक बार बीट का और बता दीजिएगा सर, दोबारा से बीट का समझ में नहीं आया सर, बीट कैसे करते हैं? हेलो हेलो कौन सा बीट? Yeah, please mute yourself. Actually, there is a lot of echo. हाँ, there are a lot of mics are on. Yeah, please mute yourself. हाँ, धर्मेंद्र जी बताइए, क्या कह रहे थे आप? सर, ये बीट के बारे में पूछना था सर। एक बार जैसे जो भी आइटम 25,000 से ज्यादा के हो जाते हैं सर, तो इसमें एलपीसी के साथ कैसे मतलब बीट करते हैं सर इसमें परचेज करने के लिए? हाँ, कंपैरिजन के साथ। हाँ जी सर, वो कंपैरिजन वाला तो व्हाट्सएप बता दिया था सर, तो समझ में आ गया था सर, लेकिन वो ये बीट वाला वही है सर, सिस्टम कंपैरिजन वाला? नहीं नहीं, देखिए कंपैरिजन वाला अलग चीज है। कंपैरिजन इनफैक्ट जो आप 2.5 लाख में कंपैरिजन से लोकल परचेज कमेटी के थ्रू लेते थे, जेम को पॉपुलर करने के लिए जेम ने क्या किया है, 5 लाख तक का कर दिया है कंपैरिजन से। ओके सर, ठीक है ना, तो आप अप टू 5 लाख आइटम जो है मोस्टली जो डे टू डे कंजम्पशन है ऑफिस का,
आप 5 लाख से नीचे कंपैरिजन से कर सकते हैं, अदरवाइज बीट तो आप 5,000 का भी आइटम बीट कर सकते हैं, उसमें क्या है। ओके ओके सर। जैसे जो डब्ल्यूओ का ऑब्जर्वेशन था कि आप इसको मार्केट से वो करिए, तो उनको उनके लिए जो है 4,000 का पेन ड्राइव आप बीट से ले लीजिए, फिर वो पूरा ऑफिस जो है बैठा रहेगा बीट करते हुए। ओके सर। वैसे जनरली सर बीट का किस लिए करते हैं सर, मतलब कितने आइटम की कॉस्ट के लिए करते हैं सर, कुछ बीट तो आइडिया 5 देंगे के तो। ऊपर मैंडेटरी है बीट करना, ओके ओके सर। और 2 लाख से नीचे जो है यूजुअली जो आप अगर सीपीपी पोर्टल के थ्रू ले रहे हैं तो 2 लाख से नीचे बिड ऑफलाइन कोटेशन आप मंगा सकते हैं, और 2 लाख से ऊपर जो है ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ओके सर एक चीज पूछना है सर, अगर वर्क्स में सर हमको थ्रू कोटेशन करना हो सर, तो उसका कोई लिमिटेशन है सर? एक्चुअली सीडब्ल्यूसी में है आप? जी सर। सीडब्ल्यूसी में है अगर, तो मैं तो लिमिटेड कोटेशन यहाँ मैंने नहीं देखा है और करना भी नहीं चाहिए। लिमिटेड कोटेशन बेसिकली जो सीपीडब्ल्यूडी वगैरह में क्लास ए क्लास बी वेंडर जो भी होता है ना, उन्होंने क्लासिफाई कर रखा है, तो हमारे यहाँ तो ऐसा कोई क्लासिफिकेशन है नहीं, और हम लोग कोई वर्क कराने वाले ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, तो लिमिटेड टेंडर अवॉइड करिए। तो वैसे एक डेलीगेशन ऑफ पावर में दिया हुआ है, अप टू 4 लाख तक का है, डीडी को दिया हुआ है लिमिटेड कोटेशन, और एससी साहब को भी है कुछ पावर है। जी सर, थैंक यू सर। एक्चुअली लिमिटेड टेंडर हमने किया है, इधर हमारे पास एक डीजीआर का कॉन्ट्रैक्ट है, सिक्योरिटी सर्विसेज का। हाँ हाँ। हमने एक्चुअली उसमें इशू ये है, वी हैव टू प्लेस द वर्क ऑर्डर, वी हैव टू कॉल द टेंडर ओनली फॉर द डीजीआर अप्रूव्ड contractors. Okay. So of course we have got the approval from the ministries. That's why we have been doing every year. पहले हमने CPP through करता था limited tender. Now we have been doing the same on EGEM also. अच्छा, EGEM जेम पे कैसे होता है लिमिटेड नहीं टेंडर? उसमें कुछ नहीं सर, बस उसमें कंडीशंस डालना होता है, जो भी डीजीआर अप्रूव्ड है उसी को, उसको ऐसे सेपरेट ऑप्शन नहीं है। ओनली थिंग इज वी हैव टू इंपोज कंडीशंस, दैट्स इट। ओके ओके, आप थ्रू कस्टम बिड? यस सर। ठीक है। ओके। हाँ इसमें या तो श्रीनिवास फिर आफ्टरनून में करें, फिर एक सर्विस वाला वो जो बिड है। हाँ ठीक है सर, पोस्ट लंच वी कैन कंटिन्यू इट सर। एक्चुअली हमने क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए रखा है लंच के बाद। नहीं अगर ऐसा है, एक्चुअली वी हैव बीन डूइंग क्वेश्चन आंसर एवरी सेशन। हेलो कंबाइंड, या कंबाइंड है ये, तो हम लंच के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं सर 3 बजे। हाँ, एक मैं मैन पावर का बिड जो है ना, कस्टम बिड के थ्रू इनको बता देना चाहता हूँ। यस सर, तो अच्छा रहेगा। हाँ दैट विल बी गुड सर। वो उसका कर सकते हैं। अभी हम हमारी आवाज क्यों नहीं आ रही? थैंक यू श्रीनिवास, थैंक यू अखिल सर। एक्चुअली पोस्ट लंच वी आर गोइंग टू मीट एट 3 PM. The link will be the same for all the sessions for this training program for today and tomorrow. The same link, same meeting and same password. So we are going to meet here at 3 PM today. Okay, till then have a great lunch. Thank you. Thank you sir. Thank you everyone. Thank you. Lunch